Welcome to the last and final installment of Gala Standard Maths paper number 6, 2025. Starting as usual from the objectives. Factor tree 3x, 3x, factor tree में you have to start reverse. कैसे? 2 2 ज़ा 4 तो y की वैल्यू 4 मिल गई. 5 4 ज़ा 20 and 3 into 20 60. So y is 4, ये y था ना, and x is 20. X plus y is 20 plus 4. 24 is the final answer. Second, if the zero of polynomial are reciprocal of each other, you have to by heart, if zeros are reciprocal of each other, then A is equal to C. A 5, C 2m minus 9, माइनस 9 सामने चला जाएगा प्लस 9, 2 डिवाइड हो जाएगा, hence m is equal to 7. If the graph of y is equal to mx plus 3 is a line passing through 2 9, this is a line which passes through 2 and 9, तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 19 सब्सटीट्यूट कर दो. थ्री सामने माइनस तो 16, 2 सामने डिवाइड तो 8, m is equal to 8. If the roots of quadratic equation are real and equal, then d is equal to 0. Sum over. S1 मतलब sum 2 plus 4 plus dot 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 up to 2n. So this is called sum of even numbers. Sum of even numbers का एक शॉर्टकट है n into n plus 1. S2 is sum of odd numbers 1, 3, 5, 7 up to 2n minus 1. उसका टोटल का शॉर्टकट है n स्क्वायर. देन S1 is to S2 मतलब S1 upon S2, n कट, आंसर is n plus 1 upon n. So there are three sums which you should by heart. एक होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का टोटल n इंटू एन प्लस 1 बाई 2. फिर होता है इवन नंबर्स का टोटल 2 4 6 8 10 का टोटल दैट इज n इंटू एन प्लस 1. ऑड नंबर्स का टोटल दैट इज n स्क्वायर, और ये है रेशियो. सिक्स्थ ट्राइंगल ABC, P and Q lie on AB and AC such that PQ is parallel to BC. PQ is parallel to BC on triangle ABC. If AP is 5, PB 12, AQ 8, तो AC कितना? अब पूरा AC बाद में फाइंड करेंगे, पहले ये टुकड़ा फाइंड करते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द थियरम 6.1, टुकड़ा अपॉन टुकड़ा इज टुकड़ा अपॉन टुकड़ा. 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू 8 अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 96. x is 96 upon 5. x is 19.5. And if x is 19.5, then AC is 19.5 plus 8, 27.5 is the answer, and hence option A. Yeah, 27.2. चेक करते हैं वापस, लगभग डिवीजन में गड़बड़ है. 96 अपॉन 5
5 1s are 5, carry 4, 46, 5 9s are 45, 19.2 आएगा, and 19.2 plus 8 is 27.2. Hence option A is correct answer. 7. The area of triangle with vertices so and so is dash square units. इसमें best will be if you can manage drawing a fake graph. 6 0 1 2 3 4 5 6 6 0 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12. एक मिनट, 6 0 के बाद 12 0 यहीं आएगा. इट इज स्टिल ऑन एक्स एक्सिस. आई थॉट इट्स ऑन वाई एक्सिस. सो 6 0 12 0 एंड 15 5. 15 5 13 14 15 5. The very interesting sum, not easy. 6 0 12 0 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 6 यूनिट्स. लॉजिक है. और 15 5 की हाइट कितनी है? 5. वो y कोऑर्डिनेट बता रहा है. ये लॉजिक है. अब ये 3 डॉट्स मिलके ट्राइंगल बना रहे हैं. ये रहा. तो फ्रॉम द ग्राफ I can find out that the base is 6 and the height is 5. Therefore, the area triangle is half base into altitude या half base into height. Answer is 15 units. Very very unique sum. उसके लिए ग्राफ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए. Eighth sum. Sine of something is 1/2. वन बाई टू टेबल में कब आता है? जब एंगल 30 है. तो ये एंगल है वो 30 है क्योंकि साइन समथिंग इज 1/2. देयरफॉर एक्स इज 20. नाइन्थ सम. ABCD is cyclic quadrilateral. If B is 60 then D is how much? Cyclic quadrilateral मतलब सर्कल के अंदर 4 पॉइंट्स को ज्वाइन किया है. A, B, C, D. And rule is angle B plus angle D is always 180 in a cyclic quadrilateral. B 60 है तो D 120 is the answer because the total of the opposite angles is 180 is a rule. The maximum area of triangle inscribed in a semicircle with radius 10. ये भी बहुत पॉपुलर सम हुआ करते थे पहले. सेमीसर्कल maximum area of triangle is always when you join this. My pad is acting funny, sorry. ये और ये ज्वाइन करोगे तो मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिलेगा. ये टेम्पररी ज्वाइन करना. नाउ दिस इज द बिगेस्ट ट्राइंगल इनसाइड द सेमी सर्कल दैट यू हैव टू रिमेंबर. रेडियस 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये तीनों रेडियस है. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड या हाइट. बेस 20 दिख रहा है पूरा और हाइट 10 है. देयरफॉर आंसर इज 100. Cost of an apple with radius 3 is 8 rupees. 3 सेंटीमीटर का रेडियस 8 रुपए का.
तो 6 सेंटीमीटर का रेडियस, 16 आंसर लगता है तुमको, बट ये रॉन्ग है. एप्पल्स आर नॉट सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेडियसेस. एप्पल्स आर सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, रेडियस नहीं. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस एप्पल जिसका रेडियस 3 है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. इतना वॉल्यूम 8 रुपए का है. तो अगर रेडियस डबल हो गया 6, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. हाउ मच रुपीज? सो क्रॉस मल्टीप्लाई 4/3 pi 6 cube into 8 upon 4/3 pi 3 cube. 4/3 pi cut, 6 cube into 8 upon 3 cube. 3 3 3 cut with 6 6 6 बचा 2 2 2 2 to the 4 to the 8 8 जा 64 रुपीज का एप्पल बन जाएगा भाई, 16 का नहीं. तो रिमेंबर टू क्रॉस मल्टीप्लाई विथ वॉल्यूम, don't cross multiply with radius. The mean of first n natural numbers is n plus 1/2. By heart this. फिर भी एक बार मेथड दिखाता हूं, मैंने दूसरे पेपर्स में भी दिखाई है. मेथड समझ लो. अगर बाय हार्ट करना भूल गए तो मेथड काम में आएगी. मीन is sum of all observations upon number of observations. Observations क्या है? First n natural numbers, तो उसका टोटल है n into n plus 1/2. है कितने नेचुरल नंबर्स? n, which is n into n plus 1/2. ये n ऊपर चला जाएगा, n cut, therefore answer is n plus 1/2 as mentioned earlier. PA 0.9 स्क्वायर है तो PA बार 0.1 स्क्वायर होगा. ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्युटली फॉल्स, बिकॉज PA 0.9 स्क्वायर मीन्स PA 0.81. PA बार 0.1 स्क्वायर मीन्स 0.01. PA बार का टोटल 0.82 हो रहा है, एक्चुअल में 1 होना चाहिए. देयरफॉर आंसर इज फॉल्स. क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एटमोस्ट 3 रियल जीरोस. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम. क्यूबिक के मैक्सिमम 3 जीरोस होते हैं. करेक्ट. The product of the roots of the equation so and so is -14. Product of the roots मतलब अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट मतलब C/A मतलब -14 upon 5 होना चाहिए, -14 नहीं. Therefore statement is false. Points so and so are collinear. 2 4 6 4 4 8. प्रूव कोलिनियर तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बट आई विल ट्राई टू शो यू अ ट्रिक. नहीं, ट्रिक 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 ट्रिक. फेक ग्राफ पेपर 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 4 6 4. ये गलत. 2 4 6 4 4 8. कहाँ है कोलिनियर? फॉल्स. तो रफ में भी पॉइंट प्लॉट करोगे तो पता चल जाएगा दैट इट इज नॉट ट्रू. 17 sum. The radius of the circle is 8. Find the area of square inscribed in a circle. Again very popular, very doable. सर्कल के अंदर अगर मैं स्क्वायर ड्रॉ करूं तो उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा?
and the radius of the circle is given. सर्कल के अंदर जब स्क्वायर होगा तो ये डायमीटर भी है और डायगोनल भी. पहले डायमीटर बनाते हैं इसको. रेडियस इज 8, therefore this is 8, this is 8. therefore आधा स्क्वायर में ये 16 है और स्क्वायर की साइड x x है विथ 90 डिग्री. पाइथागोरस थियरम, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज हाइपोस्क्वायर. 2x square is 256, x square is 128, x is root 128, x is 8 root 2. तो मुझे स्क्वायर की साइड मिल गई 8 root 2 चारों साइड्स. Therefore the area of square is side square, which is 8 root 2 square, which is 128. So what will you remember is the shortcut trick I am teaching you कि अगर रेडियस r है तो स्क्वायर का एरिया इज 2r स्क्वायर. इंस्टेंटली 1 सेकेंड में आंसर आएगा. यू कैन सॉल्व डिफरेंट सम्स बाय टेकिंग एनी रेडियस यू वांट and find out that this works very well. If the radius is r, area of square is 2r square. Eighteenth, find the mode of the given observations. वाह, एक जमाने में 9th में होता था, अब ना 9th में है और ना 10th में, फिर भी पूछते रहते हैं. फाइंड द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब मोड मतलब हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर. 15 is repeating maximum number of times, therefore mode is 15. If 2520 is so and so, then find P and Q. कुछ नहीं, 2520 को फैक्टराइज कर दो. 2520 ये करना है. What is it made up of? 2 1260, 2 630, 2 315, 3 105, 3 35 and 75. कितने दुग्गे? 3. कितने तिग्गे? 2 और एक 5 और एक 7. Now when you compare this with this thing 3 raised to p, तो ये p है, p मिल गया 2. और 7 के पहले q अकेला है, 7 के पहले तो 5 आना चाहिए, therefore q is 5. p and q की वैल्यू मिल गई by simple factorization. Is the equation so and so quadratic or not? Y plus 1 whole square is equal to 2y minus 3. Y square plus 2y plus 1 is 2y minus 6. 2y cut. Y square plus 7 is 0. Yes, it's a quadratic equation क्योंकि y square बच गया. (21) very easy. Sum of 3 zeros alpha plus beta plus gamma is minus b by a. टेक्स्ट बुक में है, बाय हार्ट कर लेना. बट ये वर्जन टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. 1 बाय अल्फा बीटा, 1 बाय बीटा गामा, 1 बाय गामा अल्फा क्या है? पहले एलसीएम लो तो नीचे आएगा अल्फा बीटा गामा. अल्फा बीटा है, गामा मिसिंग है कंपैरिजन में, तो ऊपर गामा. बीटा गामा है, अल्फा मिसिंग है, गामा अल्फा, बीटा मिसिंग है. ऊपर बन गया सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए. जस्ट नाउ वी मार्क दैट आंसर एंड दिस इज प्रोडक्ट, इट इज माइनस डी बाई ए. अपॉन ए कट, माइनस माइनस कट, बी अपॉन डी इज द आंसर. हो सके तो बाय हार्ट कर लो, तो झंझट नहीं,
कैलकुलेशन की। कॉट थीटा, अब ये सारे रूट वाले हैं, तो कॉट का एक रिलेशनशिप लिखते हैं, cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1। यू हैव टू बाय हार्ट ओनली वन वर्जन, जिसमें आंसर 1 आता है वो सबसे इजी वर्जन है, याद रख लो। कॉट स्क्वायर और 1 की अदला बदली करो, cosec स्क्वायर माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो तो ये चला गया, रूट cosec स्क्वायर माइनस 1 इज द आंसर। कॉस फाइंड करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, साइन स्क्वायर को सामने शिफ्ट कर दो और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर सामने जाके रूट बन जाएगा, कॉस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट। दिस इज द ऑप्शन। सेक्शन बी 2 मार्कर्स, सम नंबर 25, find the HCF of 96404 by prime factorization and find their LCM. This is a very straightforward sum, so you have to do it yourself, I will not touch it। 26th, solve the following pair of linear equations। मेथड का नाम ही नहीं है, कितनी शांति, एलिमिनेशन ही करना, डोंट इवन थिंक अबाउट सब्स्टिट्यूशन। I will multiply 3 here and 2 here, trying to eliminate x। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 into 46 138, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 into 74 148, minus 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 6x minus 6x gone, minus y is equal to minus 10, y is equal to 10। उसके बाद किसी भी एक इक्वेशन में डालो, तुमको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। Twenty-seventh sum, the product of two consecutive positive integers is 306। Let two consecutive positive integers be x and x plus 1। ये तुम्हारा assumption है। This is how the sum starts। Product मतलब multiply of first number and the second number is 306। So x square plus x is 306। So x square plus x minus 306 is equal to 0। अगर ये टेक्स्ट बुक का सम है तो स्प्लिटिंग बाय हार्ट कर लो, फायदे में रहोगे। नहीं होता बाय हार्ट कोई बात नहीं, सॉल्व करना सीख लो। 306 को फैक्टराइज, 3 102, 2 51 जा, 3 17 जा 17 1 जा। So 306 is made up of 2 3 3 17, 3 3 जा 9 2 जा 18 और ये है 17। हो गया, मुझे +1 चाहिए तो +18 minus 17। The splitting is x plus 18 x minus 17, therefore the value is minus 18 and 17। This is the main value of x, therefore conclusion is very very important, which you have to write down। The two consecutive positive integers are 17 and 18। Twenty-eighth sum, find the value of k for which the following quadratic equation has real and equal roots। a 1 है, b oh this is unsolvable sum because a b c की वैल्यू को मिक्स कर दिया है, therefore we will not be able to find out a b c। इक्वेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा
एक्स स्क्वायर वाले टर्म अलग, एक्स वाले टर्म अलग, और खाली टर्म्स मतलब कांस्टेंट अलग। कैसे करना अलग अलग? क्वेश्चन कॉपी किया, मल्टीप्लाई द के इनसाइड 2kx प्लस k इंटू के स्क्वायर, k इंटू -1 माइनस के प्लस 2। वंस यू डू दिस यू कैन सी एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म અને બાકી બધા નવરા। तो यहाँ से a, यहाँ से b और यहाँ से c मिलेगा। कुछ भी डायरेक्ट उठाया गया सम पानी में। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2k और ये पूरा c है। अब find the value of k for which quadratic equation has real and equal roots। रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा जब d जीरो होगा। d जीरो का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac इज जीरो, 2k स्क्वायर माइनस 4ac इज जीरो, 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज 0, 4k स्क्वायर कट, 4k माइनस 8 इज 0, 8/4 इज 2। आंसर आ गया k इज इक्वल टू 2। Twenty-ninth sum. Which term of the AP is the first negative term? First negative term में an less than 0 से शुरुआत करें, means a plus n minus 1 d is less than 0। a 45, d minus 4, so 45 minus 4n plus 4 less than 0, 45 plus 4 49 minus 4n less than 0, 49 is less than 4n, 49 by 4 less than n, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 12.25 आया। तो this is telling me n is bigger than 12.25। तो 12.25 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? 13। Hence the final answer is the 13th term। You have to write down the sentence is the first negative term। पूछा नहीं है, फिर भी अगर ढूंढना है तो ढूंढ सकते हो कि वो टर्म है क्या। a13 is equal to a plus 12d। a की वैल्यू है, d की वैल्यू है 45 minus 48 minus 3 is the value of the first negative term और उसकी पोजीशन है 13। No harm in finding it, but as such पूछा नहीं है तो चल जाएगा। Which term is the first negative term? ढूंढ ही लो, मैं तो बोलता हूँ। Always try to be on the safer side of the board's paper checker। 30th sum टेक्स्ट बुक का है, tan of something is √3। तो tan something √3, तो वो समथिंग एंगल क्या है? 60 डिग्री। tan of something is 1/√3, तो वो समथिंग क्या है? 1/√3 कब आता है? 30 डिग्री। एलिमिनेशन, 2a is 90, a is 45, और अगर a 45 है तो b 15 है। सम ओवर। 31st sum, prove that sin plus cosec होल स्क्वायर प्लस cos प्लस sec होल स्क्वायर। पहले तो LHS लिखना है, फिर क्वेश्चन कॉपी करना है लेफ्ट साइड का,
and then you have to open the whole square. Sine plus cosec whole square is sine square plus 2 sine cosec plus cosec square प्लस cos प्लस sec होल स्क्वायर को भी ओपन करो, cos स्क्वायर प्लस 2 cos sec प्लस sec स्क्वायर. साइन इंटू कॉसेक 1 बन जाएगा एंड 2 1 जा 2. कॉस इंटू सेक 1 बन जाएगा, 2 1 जा 2. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज ऑल्सो 1. फ्री में बच गया कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर. 2 + 2 + 1 5 तो बन गया, मुझे 7 चाहिए, बट कॉसेक स्क्वायर कैन बी कन्वर्टेड टू 1 to plus cot square and sec square is 1 plus tan square और एक 1 1 आ गया, so 7 plus tan square plus cot square. This is exactly my RHS is, hence sum over. (30-second sum). XY is a tangent to the circle with center O touching the circle at Y. Touching the circle at Y सुनाई दिया. XY is the tangent सुनाई दिया. Center O पता चला. तो ये भाई साहब रेडियस है, टेंजेंट रेडियस 90 है. OX 61, तो OX ज्वाइन कर दिया 61. डायमीटर 22 तो रेडियस 11. इट इज टोटली वर्थ टू रिमेंबर दैट 61 और 11 का पाइथा 60 होता है, ट्रिपलेट्स. एंड एक्स वाई इज आस्क्ड, आंसर इज 60. ऑल यू हैव टू डू इज पाइथागोरस थ्योरम. बट रिमेंबर इट्स अ 2 मार्क सम. क्लासरूम के अंदर मेथड के साथ लिखवाया है सम. ओपन द बुक, फाइंड द मेथड. बाकी इसमें से भी यू कैन वेरी नाइसली राइट विथ ऑल द रीजंस and then score full 2 marks. The surface area of 2 spheres are in the ratio of 16 and 9. 2 sphere है, 16 9, तो ऊपर बड़ा sphere है, नीचे छोटा sphere है. Surface area 1 upon surface area 2 is 16 upon 9. तो sphere का surface area is 4 pi r square, पहला रेडियस 4 pi r square, दूसरा रेडियस 4 pi कट, तो 16 upon 9 इज रेडियस 1 का स्क्वायर अपॉन रेडियस 2 का स्क्वायर. तो रेडियस 1 अपॉन रेडियस 2 कितना, 4/3. क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब r1 अपॉन 4/3 पाई r क्यूब r2. 4/3 पाई कट, r1 का क्यूब r2 का क्यूब. R1 R2 4/3 है लेकिन क्यूब किया है तो 4 4 4 3 3 3. 64 upon 27 is the sure short answer, the ratio of their volumes. So surface area में से रेडियस का रेशियो, वो रेडियस का रेशियो इसमें डालोगे तो वॉल्यूम का रेशियो मिल जाएगा. For a given frequency distribution in usual notation, find the mean of the data. Mean का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो भी FI UI वाला. Mean is equal to A plus sigma FI UI upon sigma FI into H. A है, FI UI है, sigma FI है, H है. नंबर डालो, मीन फाइंड करो. वेरी इजी सम. 35. Find the median. Absolutely simple sum. Do it yourself. Find the answer. Playing cards.
हाँ, ट्रिकी सम, कुछ तो गड़बड़ है दया। 52 कार्ड्स में से किंग्स, क्वींस, जैक्स एंड एसेस ऑफ ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर बोले तो फल्ली, इंग्लिश में कहते हैं क्लब, અને કાળી इंग्लिश में कहते हैं स्पेड। राजा निकाल दिया, रानी निकाल दी, गुलाम निकाल दिया, इक्का निकाल दिया, 8 पत्ते निकाल दिए। 52 माइनस 8 इज इक्वल टू 46 कार्ड्स आर लेफ्ट विथ यू। रॉन्ग, 44 cards are left with you. So king, queen, jack, ace of black color were removed from the remaining card. The card is drawn at random. What's the probability that it's a face card? तो 8 फेस कार्ड नहीं, 8 नहीं, राजा रानी गुल्लू, तो 6 तो निकल गए। तो कौन सा फेस कार्ड अभी भी अंदर है? हार्ट का किंग क्वीन जैक, डायमंड का किंग क्वीन जैक। 6 face cards are remaining out of 44, therefore answer is 3/22. And what is the probability of getting a red card? पूरे के पूरे 26 रेड कार्ड अभी भी अंदर है, out of 44, 13/22 is the answer. '37 sum. It is given in the group of 3 students. The probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. Probability that 2 students not have birthday on same day, जो भी सेंटेंस है पूरा लिख दो, is 0.992. What's the probability that 2 students have the same birthday? Probability of not same birthday plus probability of same birth date is always 1. ये यूनिवर्सल रूल है। नॉट सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी 0.992 है, जो सामने 1 में से माइनस हो जाएगी, and therefore probability that the birthday are on the same day is 0.008. That's the answer. तो 2 मार्क मिलेंगे। सिर्फ 1 में से शांति से माइनस करना है। मेन फोकस इज नॉट द आंसर, इट इज द मेथड, इट्स हाउ यू राइट इट। तो मेक श्योर क्लासरूम में जैसे सिखाया वैसे लिखना। दैट्स वाई राइटिंग ऑल द प्रीलिम एग्जाम्स इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो एक एक सम हम चेक करके तुमको बताते हैं कि ऐसे लिखना, वैसे लिखना, एक्सेट्रा। राइट नाउ द प्रायोरिटी सॉल्विंग द सम्स, मेथड विल बी टेकन केयर व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द एग्जाम्स। फाइंड द zeros of the polynomial so and verify the relationship between zeros and coefficients. Find zeros, v square plus 4√3v minus 15. मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर, 1 इंटू -15 इज -15। -15 में 2 फैक्टर्स है, 5 3 और एक माइनस है, बट मुझे चाहिए √3। इफ आई वांट √3 आई विल हैव टू स्प्लिट दिस 3, और 5 को भी स्प्लिट करना है, 1 5 विथ अ माइनस। अब 4 मेंबर्स है, 4 मेंबर में से 2 टीम बनानी है। 5√3 इज 1 टीम एंड -1√3 is another team. बन गया 4√3। Let's split v square plus 5√3v minus √3v minus 15. v common, v plus 5√3 minus √3 common, v plus 5√3, v plus 5√3, v minus √3, v is minus 5√3, v is √3. Hence alpha is minus 5√3, beta is √3.
इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, नहीं समझ में आ रहा है, तो श्रीधर आचार्य जनरल फॉर्मूला कर सकते हैं। तो दो में से एक टेक्निक मास्टर कर लो, इट इज गुड फॉर यू। वेरीफाई रिलेशनशिप। टू वेरीफाई रिलेशनशिप, अल्फा बीटा के साथ मुझे चाहिए ए बी सी। ए इज 1, बी is 4√3, C is -15। एक बार ये 5 पांडव मिल गए, तुमको पता है कैसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते समय लेफ्ट राइट का आंसर सेम आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b पे वेरीफाई करते समय -4√3 इज इक्वल टू -4√3 आएगा, ध्यान रखना। एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय, ये वेरीफाई करते समय -15 इज इक्वल टू -15 आएगा, चेक कर लेना। थर्टी-नाइन्थ सम, form a quadratic polynomial whose zeros are this and this। very very interesting। zeros दिए हुए हैं, थर्टी-नाइन्थ सम, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर सो एंड सो। जीरोज मतलब x की वैल्यू अल्फा 7 प्लस रूट 5, बीटा 7 माइनस रूट 5। तो व्हाट इज द सम ऑफ जीरोज? तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 7 प्लस रूट 5 प्लस 7 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 गॉन 14। अल्फा इंटू बीटा मतलब 7 प्लस रूट 5 इंटू 7 माइनस रूट 5। a plus b into a minus b is a square minus b square, which is 49 minus 5, 44। तो sum of zeros, product of zeros मिल गए। Now you have to write the standard equation and put the values in it। Polynomial ढूंढने का standard equation is k x square minus sum x plus product। ये तुम्हें बाय हार्ट होना चाहिए। इस के एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट सम ओवर। फोर्टीएथ सम, for given AP the pth term is q and the qth term is p, find the nth term of the AP। now this is one thing which I will proactively tell you to avoid। फिलहाल तो मैं ये सम कर दूंगा, but absolutely leave it in option। no need to do any arithmetic progression sum जिसमें अल्फाबेट्स है, नंबर्स नहीं है, तो AP मत करो क्योंकि वो बोर्ड में नहीं आता है लास्ट 4 साल से। for given AP pth term is q, pth टर्म AP Q है, qth टर्म is P, AQ is P। फाइंड द nth टर्म। AP को मैं A प्लस P माइनस 1D लिख सकता हूँ। AQ को मैं A प्लस Q माइनस 1D लिख सकता हूं। सो A प्लस PD माइनस D इज Q, A प्लस QD माइनस D इज P। I will try to do elimination। देखना कैसे। A प्लस PD माइनस D इज Q, A प्लस QD माइनस D इज P। माइनस माइनस प्लस माइनस सब की साइन चेंज कर दो, तो A एन माइनस A गॉन, माइनस D एन प्लस D गॉन,
बचा क्या, पी डी माइनस क्यू डी, और यहाँ पे Q माइनस पी, D कॉमन, P माइनस Q, Q minus P, D is Q minus P upon P minus Q, and they are not one and the same thing, they are different. तो मैं क्या करूँगा, ऊपर के ब्रैकेट को बाहर माइनस लगा के उल्टा कर दूंगा, P माइनस Q, और नीचे तो P माइनस Q है. Now they can be cancelled, but instead of 1 I will get minus 1. This is the process of finding out D, and because all such sums have been omitted from the syllabus, तो तुमको प्रैक्टिस नहीं है. So don't try to attempt this sum if possible, मिस्टेक हो जाएगी. अभी तो सिर्फ D मिला है, -1. A कैसे मिलेगा, कोई भी एक फॉर्मूला में D -1 रख दो. So A is equal A plus P minus D is Q. A plus P minus 1 D is Q. So A plus नहीं, -1 into P minus P, -1 into -1 plus 1 is Q. A is equal to P सामने plus Q minus 1. ये A मिल गया. अब D -1, A P plus Q minus 1, A n ढूंढना है. A n is equal to A plus n minus 1 D. A D. -1 into n and -1 plus 1 1. -1 plus 1 cancel. P plus Q minus n is the answer. So do copy it while making the Gala solutions for yourself, but try to avoid this sum. प्रैक्टिस बुक में, नवनीत की प्रैक्टिस बुक में अभी भी ऐसे बहुत सारे सम्स है, बट you should not do it. You do it in your free time to improve your maths, not for the board exam. 41 sum. The nth term of the AP is given by 4n plus 7. Nth term मतलब an is 4n plus 7. Find sum of first 25 terms of the AP. S25 पूछा है. Now in our homework where we did around 30 types of sums और हर एक के 3-3, 5-5 सम थे, तो वो 200 सम्स में एक कैटेगरी थी जिसमें an में से AP बनाना सिखाया था. वो करना है. Let n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. तो an बन गया a1, a2, a3. 4n plus 7 मतलब 4 into 1 plus 7, 4 into 2 plus 7, 4 into 3 plus 7. 11, 15, 19 मिल गई AP. Therefore AP is 11, 15, 19, जिसमें से मिल गया A, मिल गया मुझे D. S25 क्वेश्चन मार्क, और S25 ढूंढने के लिए n क्या लोगे, 25. Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना दिखा रहा हूं. Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1d is equal to 25 by 2, 2 into a plus 25 minus 1 d. 25 by 2,
22 plus 24 4 96, 25 by 2 into 198 plus 20, 118 118 2 से कट हो जाएगा, 59. Therefore 25 into 59, 1475 is the answer. Utpatange, therefore it is worth checking the answer one time. Paper number 6 में देख लो, जो सम मना किया था उसका आंसर तो करेक्ट है कम से कम, और ये रहा 1475. इट इज करेक्ट. सम नंबर 42. If A and B are so and so, find the coordinates of P such that AP. टेक्स्ट बुक में ऐसा एक सम है, और जिनकी प्रैक्टिस कच्ची है वो फंस सकते हैं. A -2 -2, B 2 -4. Find the coordinates of P. P डिवाइडिंग पॉइंट है, PXY. बट PXY ढूंढने के लिए रेशियो चाहिए. रेशियो डायरेक्टली नहीं दिया है, ऐसे लिखा है AP इज 3/7 AB. तो इसका ऑपरेशन मैं बताता हूँ अलग से, तुम भी अलग से ही लिखना. AP इज 3/7 AB. AB मल्टीप्लाई में सामने डिवाइड कर दो. AP AB 3 7, तो AP इज 3, ये रहा AP. AB 7 मतलब पूरा 7, तो ये 4 होना चाहिए ना. देयरफॉर द रेशियो इज 3:4. यहीं पे लिख देने का. देयरफॉर APPB 2 टुकड़े है, 3:4. So this is how you decode and get the ratio. रेशियो मिल चुका है. इट इज मोस्ट सिंपल सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेशन. फाइंड द आंसर योरसेल्फ एंड वेरीफाइड फ्रॉम द बैक ऑफ द बुक. सम नंबर 43. प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज सप्लीमेंट्री टू एंगल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. प्रूव दैट सम तुम्हारे क्लास वर्क में से कॉपी करना है. रेगुलर लेक्चर में मैंने लिखवाया है, एंड इट्स वेरी इजी, डूएबल ऑल्सो. So don't leave it. 44th sum, triangle ABC drawn to circumscribe a circle of radius 4 such that BDDC, into which BC is divided by the point of contact. Okay, the question was broken and divided into two parts. Half was at the bottom, half was somewhere else, so I joined them. 44th sum is absolutely made so that you can leave it. कुछ सम्स बने ही होते हैं कि तुम अटेम्प्ट ना करो, एंड दैट इज द स्मार्टनेस विच यू विल यूज इन बोर्ड एग्जाम. बट स्टिल दैट डज नॉट मीन के यू विल नॉट लर्न इट. अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. सर्कमस्क्राइब मतलब ट्राइंगल बाहर, सर्कल अंदर. रेडियस 4, ये देखो रेडियस OF, OE, OD are the 3 radiuses, and all the radiuses 4, 4, 4. Also, this blue line which I am going to draw, they are tangents. BD touches the circle, AB touches the circle, AC touches the circle. Therefore, can I confidently say radius and tangent are perpendicular to each other?
ये 90 है, दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90। क्वेश्चन थोड़ा वापस पढ़ते हैं once again. Triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 such that BDDC, into which BC is divided by the point of contact DR length 8 and 6. ये सब क्वेश्चन में नहीं, फिगर में देखना है कि ये 6 और ये 8 उतना ही कह रहे हैं. Find the side AB and AC. We have to find the remaining two sides. Theorem 10.2 says that tangents drawn from point B are always equal, तो BD is equal to BE. तो ये 8 इधर भी आ गया, B से दो tangent 8 8. And the same theorem 10.2 also says C से ड्रॉ किए हुए tangent CD और CF सेम है, तो ये भी 6 हो गया. And the same theorem says A से दो tangent है, वो भी सेम है, AF इज इक्वल टू AE, बट वो टुकड़ा पता नहीं है, X X. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. 6 6 सेम, 8 8 सेम, X X सेम, बिकॉज दे ऑल आर टेंजेंट्स एंड टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल. इसको हटा देते हैं. ओ या ओहो, ऐसे करेंगे साफ सफाई, और यहाँ का गड़बड़ गड़बड़ वापस लेके आओ भाई. बेटर, नॉट बेटर. ओके, I will join OA, OC, OB, and I will draw those three triangles to show you how they break into three parts. This is triangle A, C, O. This is A, B, O. This is C, B, O. तीनों के बेस हमें पता है. CB is the base of the triangle, 6 plus 8 14 है. AC is the base, AB is the base. This base is 6 plus 8 14. This base is x plus 8. This base is x plus 6. Also we know 4 is the altitude, क्योंकि वो 90 डिग्री लाइन है. यहाँ पे भी 4 is the altitude because it is perpendicular. And here also 4 is the altitude as per the main figure. I am going to find out the area of all three one by one. Area of AOB, BOC, COA. AOB ये रहा, बेस है x प्लस 8. So continuing from where the system got hanged, area of AOB मतलब ये triangle is half into base into altitude. Base is x plus 8, altitude is 4. 2 and 4 cut, 2,
x प्लस 8। BOC का एरिया हाफ, BOC नीचे है, बेस 14 ऑल्टीट्यूड 4, 2 and 4 कट 28। एरिया ऑफ COA, दिस इज COA, हाफ बेस x प्लस 6 ऑल्टीट्यूड 4, 2 and 4 कट 2 x plus 6। तो आई हैव फाउंड आउट द 3 एरियाज और ये तीनों को टोटल करूंगा तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ द फुल ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ABC इज 2x प्लस 16, मतलब ये, प्लस 28 सेकेंड ट्राइंगल, प्लस 2x प्लस 12 थर्ड ट्राइंगल। तो मेन ट्राइंगल में से 3 टुकड़े थे, 3 टुकड़े को ऐड करो तो मेन ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा एंड इट विल बी 2x प्लस 2x 4x प्लस 56। ये हो गया तुम्हारा 1 फर्स्ट स्टेज क्लियर। 3-4 स्टेज है। गोइंग बैक टू द मेन फिगर, इफ यू रिमेंबर 6 तो ये भी 6, ये 8 तो ये भी 8, ये x तो ये भी x, और बीच में जो रेडियस है वो 4 दिया हुआ है, सो दिस इज 4 4 4। आई एम गोइंग टू अगेन फाइंड द एरिया ऑफ ABC। दिस टाइम आई विल अप्लाई हेरॉन्स फॉर्मूला। 9th स्टैंडर्ड का हेरॉन्स फॉर्मूला लगभग ये एक ही सम में 10th में काम आता है। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड। डिवाइड बाय 2। तो नीचे का साइड 14, ये है x प्लस 6, ये है x प्लस 8, विच गिव्स मी 2x प्लस 28 डिवाइड बाय 2। 2 कॉमन निकल के कट हो जाएगा, s इज x प्लस 14। अब एरिया का एक्चुअल हेरॉन्स फॉर्मूला इज रूट ऑफ S, यहां से S माइनस फर्स्ट साइड, नीचे वाली साइड 14 माइनस कर रहा हूं, S माइनस दूसरी साइड, तो x प्लस 6 को माइनस करूंगा तो x माइनस 6 हो जाएगा, एंड S माइनस द थर्ड साइड, बचा x प्लस 14 एज इट इज, प्लस 14 माइनस 14 गॉन, ओनली x, x and minus x gone, 14 minus 6 is 8, x minus x gone, 14 minus 8 is 6। तो बचा x plus 14, x and 6 8 जा 48। यहां तक करते हैं। दिस इज फेज 2, हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहां पे भी एरिया ऑफ ABC था बट अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। यहां पे भी एरिया ऑफ ABC है। आई विल कंपेयर दीज टू एरियाज। कैसे? 4x प्लस 56 इज द फर्स्ट एरिया एंड सेकेंड इज द हेरॉन्स फॉर्मूला का एरिया, x प्लस 14, x and 48। फोर कॉमन, x प्लस 14 बचा, और यहां पे रूट इंडिविजुअली दे दो, रूट x प्लस 14, रूट x, रूट 48। 4
x प्लस 14 रूट x प्लस 14 रूट x, ये 4√3 सिंप्लीफाई हो जाता है। ये थर्ड फेज चल रहा है वेर आई एम कंपेयरिंग द टू एरियाज। 4 कट, ये रूट है और ये नॉर्मल है, तो इसके अंदर दो रूट होते हैं। जैसे 3 और √3 है, तो इसके अंदर दो √3 है। अगर आमने सामने हो तो एक तो कट हो सकता है। सो रूट x प्लस 14 इसके साथ कट करूंगा तो यहाँ पे रूट x प्लस 14 बचेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड रूट x प्लस 14, राइट साइड रूट x एंड √3। सब रूट में है तो रूट गायब हो सकता है। x सामने चला गया 2x, x आ गया 7। दिस इज द थर्ड फेज। x7 आने से हमारा क्या फायदा, ये रहा फायदा। इफ you know that x is now 7, you have successfully found out 7 plus 6 side AC is 13 जो पूछा था, and x is 7, तो 7 plus 8 15। Finally the sum is over। क्या कहा था, कुछ सम छोड़ने के लिए बनते हैं, ये भाई साहब को छोड़ देना, बट फेब्रुअरी तक आ तो जाना चाहिए। डोंट जस्ट लीव इट एंड से कि मैं करूंगा ही नहीं, दैट इज रॉन्ग एटीट्यूड। बट स्मार्ट वर्क इज डोंट डू इट इन बोर्ड एग्जाम, दैट्स ऑल। अवॉइड। सम नंबर 45, इट्स अ टेक्स्ट बुक सम। A round table cover has 6 equal designs as shown in the given figure. If the radius of the cover is 28, find the cost of making the design at the rate of 0.35। तो ये जो साइड का दिख रहा है ये डिज़ाइन है, और ऐसी 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड दीज 6 डिज़ाइंस ऑफ सेम डायमेंशंस, उसका कॉस्ट निकालना है। इफ़ यू जॉइन दिस, this basically becomes a hexagon, and hexagon में all the triangles are equilateral triangles। 6 equal designs, therefore all 6 sides are same, and if all 6 sides are same, it's a hexagon, and if it's a hexagon, all the sides are same। ये सारे लॉजिकल रूल्स हैं जो बिना बताए हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे डिज़ाइन का एरिया फाइंड करना है, उसका एक शॉर्टकट देखो। एरिया ऑफ डिज़ाइन इज एरिया ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल का एरिया गिन लो, माइनस एरिया ऑफ हेक्सागन। तो सर्कल में से अगर हेक्सागन को माइनस कर दो तो डिज़ाइन बचेगी जिसका एरिया मुझे चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, कॉपी पेस्ट द सेम, एरिया ऑफ सर्कल माइनस 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, बिकॉज हेक्सागन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल pi r square, and 6 into area of equilateral triangle is √3/4 side square। Pi 22/7, radius of the cover is 28, 28 28 minus 6 √3/4। हेक्सागन की साइड का डायमेंशन क्या है, तो बहुत ध्यान से देखोगे तो ये तो रेडियस है, एंड रेडियस 28 है और वही तो साइड है, देयरफॉर साइड ऑफ द हेक्सागन इज आल्सो 28।
7 4 जा 4 7 जा 422 जा 88 into 28 minus 6 7 जा 42 into 28 into रूट 3. ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा चाहे जैसे करो, बट that's why sometimes I recommend that very difficult sums please try to by heart the answer, वरना फंस जाओगे. Anyways, फिलहाल तो हम कैलकुलेटर यूज करेंगे टू सेव सम टाइम. 88 into 28 is 2464 minus 42 into 28 into 1.7 1999.2 ये रहा 1.7. टू 464 minus 1999.2 464.8 centimeter square is the area of design. जो पूछा नहीं है कि पूछा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं. डायरेक्ट फाइंड द कॉस्ट, और कॉस्ट है 0.35 रुपीज़ पर cm स्क्वायर. तो इस नंबर को कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो ऑल यू हैव टू डू इज 464.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 रुपीज़. ₹162.68 rupees is the cost of making this design. Whether it is right or wrong, let's check once. Correct. वैसे भी टेक्स्ट बुक का है 162.68, बाय हार्ट कर लो. Sum number 46. A box contains 12 balls out of which X are black. Box contains 12 balls total. X are black. तो बाकी कितने बचे? 12 minus X. और वो वाइट नहीं, नॉट ब्लैक लिखना, क्योंकि हमें क्या मालूम दूसरा कौन सा कलर है. तो बॉक्स कंटेन्स 12 balls out of which X are black. One ball is drawn at random from the box. What is the probability that it will be a black ball? Black ball होने के चांसेस क्या है? Probability that a black ball will come is number of black balls upon total number of balls. ये हो गया पहला आंसर. If 6 more black balls are put in the box. अब सिनेरियो चेंज हो रहा है. पहले X थे, उसमें 6 ब्लैक बॉल्स ऐड कर दिए, तो अब X + 6 हो गया. बट ये सेम है, 12 minus X, नॉट ब्लैक. और 6 ब्लैक ऐड किए तो टोटल बॉल्स 12 + 6 18 हो जाएंगे. तो नंबर्स चेंज हो गए. इफ 6 मोर, अब वापस करते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, क्योंकि मुझे पता है कि वहां आगे यूज होने वाली. अब ब्लैक आने के चांसेस है नंबर ऑफ ब्लैक अपॉन टोटल नंबर. एंड नाउ इज द रियल हसल. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल नाउ, मतलब ये इज double of before. तो this thing is double of before. X + 6 upon 18 probability is double of before probability. ये मैंने यूनिट टेस्ट में भी पूछा था, लास्ट 2 महीने पहले हुई थी. तो इट्स अ पॉपुलर सम, दे कीप आस्किंग इन नवनीत गाला. क्या करेंगे? X + 6 upon 18 is 2 and 12 कट X upon 6. 6 and 18 सीधा कट हो सकते हैं.
x plus 6 is equal to 3x, 6 is equal to 2x, x is equal to 3. There are 3 black balls. Find x. 3. इतना कम? Correct. X is 3. Section D of the last paper. Aftab. Textbook का sum. Aftab tells his daughter, find their present age. Let age of Aftab is equal to x. Daughter is equal to y. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago. अब जैसे ही 7 years ago आया, you will have to rewrite the ages. 7 years ago, आफ्ताब x नहीं x minus 7 है, और डॉटर y नहीं y minus 7 है. That is first thing. 7 years ago का स्टेटमेंट. थोड़ी देर बाद बोलता है 3 years from now. यहाँ पे लिखा है 3 years from now, 3 साल बाद. तो 3 years from now, तो आफ्ताब x plus 3 हो जाएगा. 3 साल बड़ा हो जाएगा. आज x है, 3 साल बाद x plus 3. आफ्टर नहीं बे, आफ्ताब. एंड डॉटर विल बिकम y plus 3. किसी भी एज सम में बिफोर और आफ्टर हो तो तुम्हारा लेट बहुत सारी बार लिखना पड़ेगा. तो आज की एज अलग, 7 साल पहले अलग, 3 साल बाद अलग, लेकिन ये एज का करना क्या है. आफ्ताब says after 7 years ago I was 7 times you. आफ्ताब मतलब I, was मतलब is equal to 7 times daughter. आफ्ताब 7 times daughter. ये रहा आफ्ताब 7 times, ये रही डॉटर. अबे डॉटर y minus 7 है. सेकेंड सेंटेंस, 3 years from now, 3 साल बाद, I shall be 3 times you. I मतलब आफ्ताब, shall be 3 times you मतलब डॉटर से बात कर रहा है. तो आफ्ताब will be 3 times daughter. That's your 2 equations. अब इसको सॉल्व किया जाए. रेड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. x minus 7 is equal to 7y minus 49. So x minus 7y is equal to minus 42. ब्लू इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. x plus 3 is equal to 3y plus 9. x minus 3y is equal to 6. Do elimination on your own. Find the answer and verify it from the back. ये हो गया आफ्ताब वाला सम. मुझे डाउट है सेम टू सेम था टेक्स्ट बुक में कि नहीं. जस्ट चेक वन टाइम, बट दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट. सम नंबर 48. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. ये भी टेक्स्ट बुक का है. रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसका एक तरफ है लेंथ, दूसरी तरफ है ब्रेथ. एरिया इज 528. द लेंथ इज 1 more than twice breadth. लेंथ इज 1 more twice breadth. लेंथ इज 1 more twice breadth. L is 1 plus 2b. जब एक इक्वेशन बना है, अब अजम्पशन करना है, तो ऑलवेज चूज x एज द राइट साइड वाले आइटम. सो लेट
ब्रेथ इज इक्वल टू x, और जैसे तुमने ब्रेथ को x बनाया, मुझे ये b की जगह पे x दिख रहा है, तो लेंथ अपने आप पता चल जाता है 1 प्लस 2x, मतलब 2x प्लस 1, और एरिया 528 है विच इज गिवन, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया 528, लेंथ 2x प्लस 1, breadth x, so 528 is 2x square plus x, so 2x square plus x minus 528 is 0. Open your classwork, check this sum, do the middle term splitting yourself. 49 basic proportionality theorem, do it yourself. 50 prove that sum from textbook, median वाला है, शायद example होगा. Do it yourself, don't do it yourself, basically copy it with full method and figure from the book जिसमें पहले मैंने लिखवाया था. 51st sum, from a point on the ground the angle of elevation of top of a 10-meter tall building is 30. 10-meter tall building को ग्राउंड से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकला 30. फ्रॉम अ पॉइंट P है, मैंने कर दिया C, तो वापस करते हैं P. फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10-meter tall building is 30. अ फ्लैग इज hoisted एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग की जगह करनी पड़ेगी, ये आ गया फ्लैग. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of top of the flag is 45. सेम पॉइंट से देखा तो ऑफ कोर्स वो और ऊंचा है तो एंगल चेंज हो गया 45. फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, x ढूंढना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग एंड पॉइंट P, y ढूंढना है. You may take √3 as this number, वो लास्ट में करेंगे. स्टेप नंबर 1, सेपरेट द टू ट्राइंगल्स. 45 वाला ट्राइंगल अलग, 30 वाला ट्राइंगल अलग. ABP इसको Q कर देते. 45 डिग्री वाला ट्राइंगल का नाम है QPB. थोड़ा टेढ़ा है, मजा नहीं आ रहा है. 30 QPB. B is 90 बिकॉज बिल्डिंग 90 डिग्री पे खड़ा है. BQ टोटल लेंथ x प्लस 10 है, नीचे है y, एंगल है 45. छोटू ट्राइंगल है A P B, B is 90, AB is 10-meter tall building and the angle is 30, नीचे y है. Apply tan in both the cases. Tan 45 मतलब 1 is opposite upon adjacent, y is equal to x plus 10. Tan 30 की वैल्यू 1/√3 is opposite upon adjacent, y क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल गया 10√3. y की वैल्यू को यहाँ रख दो, 10√3 is x plus 10, तो x मिल गया 10√3 minus 10. Very easily you could find x and y, but this is a problem sum. मैं लिख लिख के थक गया हूँ, इसलिए मैं टाइप करूँगा. Final conclusion should be written properly. तो hence
the length of the flagstaff is x is equal to whatever, and distance of point P from the building is y is equal to so and so. But this does not finish the sum. 10 कॉमन निकालना पड़ता है. दिस इज अ बेटर आंसर एंड 10√3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स चेक द आंसर्स बिकॉज आई हैव सम डाउट. ये देखो आंसर, मेरा डाउट सही निकला. डेसिमल में आंसर है. डेसिमल में आंसर है और उसका इंडिकेशन ये था जो मैंने पहले ही बताया था, √3 की वैल्यू दी हुई है 1.732. सो आफ्टर फाइंडिंग दिस यू विल हैव टू सॉल्व फर्दर. 10 1.732 minus 1, 10 into 0.732 which is 7.32 meter flagstaff की लेंथ, and 10√3 is 17.32 meter distance of the point. 7.32 17.32 is the answer. Question number 52. Cost of painting the total outer surface of a closed cylindrical oil tank. सिलेंडर ड्रॉ कर कर के भी मैं थक गया, तो अब थोड़ा ऐसा बनाते हैं. सिलिंड्रिकल टैंक बंद है ऊपर नीचे से, इसको पेंट किया, उसका खर्चा आया 237.60 रुपीज़ और रेट है 60 पैसा पर cm². 60 पैसा is the cost of painting 1 centimeter square. 23760 पैसा कितना एरिया पेंट करने का हो. So you can never compare rupees and पैसा. तो 60 पैसा मैं ले रहा हूं, तो यहां पे रुपीस को पैसा कन्वर्ट करना पड़ेगा. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. 23760 into 1 upon 60. 0 0 cut. 6 3s are 18. 57. 6 9s are 54. 36. 396 centimeter square is the area which was painted, जिसकी वजह से ये बिल आया 237 रुपीज का. तो 396 क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है द एंटायर टैंक वाज पेंटेड. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल आउटर सरफेस ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल ऑयल टैंक. टैंक की हाइट दी हुई. The height of the tank is 6 times the radius of the base of the tank. Height is 6 times the radius, और जो रेडियस है वो तो आर ही है. ना रेडियस है ना हाइट है, बट टोटल सरफेस एरिया है. TSA ऑफ सिलेंडर 2 pi r h plus r is the formula. Total surface area 396 I found out. 2 pi r h तो 6r है, हाइट इज 6 टाइम्स रेडियस, तो h की जगह 6r प्लस r. थ्री 396 2 into 22 44 r और ये 7r बन गया.
396 44 into r into 7r upon 7 7 कट 44 सामने भेज दो r into r r square 11 4 जा 11 36 and 36 upon 4 is 9 r square अगर 9 है तो r 3 है height was 6 times the radius तो 6 3 जा height is 18 not a bad sum लॉजिक पकड़ के चलना पड़ेगा रेट और कॉस्ट में से टीएसए के फॉर्मूला में से आर एंड एच 53rd sum an ice cream cone is union of right circular cone and hemisphere that has same base as the cone वापस ट्राई करते हैं आइसक्रीम का कोन बनाते हैं लेकिन ये तो ढोड़ा ही गया आइसक्रीम इसको उल्टा कर देते हैं और आइसक्रीम कोन में आइसक्रीम भरने का बंदोबस्त हो ही नहीं सकता क्योंकि वो शेप नहीं है चलो शेप बनाते हैं बबल गम फ्लेवर हाँ बन गया और उसका बेस सेम So ice cream cone is union of right circular cone and a hemisphere that has same base as the cone. Find the volume of the ice cream if the height of the conical part is 9. Height of the conical part is 9. ये height h is 9 centimeter and radius of the base is 2.5 centimeter. Radius is equal to 2.5 centimeter. करना क्या है? Find the volume of ice cream. Very easy sum. Volume of ice cream is volume of hemisphere plus volume of cone. Volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube. Volume of cone is 1 by 3 pi r square h. Take as much common as possible. 1 by 3 pi r square common तो बचा 2r plus h 1 by 3 pi r 2.5 नहीं 25 by 10 लेकिन r का स्क्वायर है 2 बार डबल ऑफ r सीधा 5 लिखो ना रेडियस 2.5 है उसका डबल 5 प्लस हाइट 9 1 by 3 22 by 7 ये 5 से कट कर दो 5 by 2 ये भी 5 से कट कर दो 5 by 2 and 5 plus 9 is 14 7 and 14 cut 2 and 2 cut ये 2 भी कट बचा 11 into 5 upon 3 correct 11 into 5 upon 3 91.66666 राउंड ऑफ करोगे तो 91.67 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन ये रहा मिक्स फ्रैक्शन में एंड इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग डेसिमल मिक्स फ्रैक्शन दोनों के सेम मार्क्स मिलेंगे सो डोंट वरी अबाउट इट दिस इज करेक्ट एंड 54th सम मिसिंग फ्रीक्वेंसी मोड ये भी मैं करूंगा क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. 7,
12, x 28, y 9, and the mode is 33 1 by 3, and the sum of frequency is 100. Mode is 33 1 by 3, 3 into 33 99 plus 1 100 by 3 यूज करेंगे. Mixed fractions are useless. And sum of frequency 100. Let us start the sum by doing sigma f is equal to sigma f. So I will find sum of frequency myself. Sum of frequency is 7 and 12 19, 29, 39, 47, 56 plus x plus y. But उनके हिसाब से sigma f is 100. Compare both the sigma f. So 56 plus x plus y is 100. X plus y is 44. Step 1. अब मोड पे ध्यान देते हैं. मोड इज 33 1 by 3, मतलब 33 से थोड़ा ज़्यादा. तो z कौन से क्लास में आता है वो चेक करो. तो 30 to 40 में आएगा. तो थॉर का हथौड़ा हैंडल से बनेगा. दिस इज हाउ it will be made, not from highest frequency, पीछे से. तो ये मिल गया f0, f1, f2, l. z का फॉर्मूला z इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h. z 100 upon 3, l lower limit 30, f1 minus f0 double of f1 minus f0 minus f2 class length 10. 30 को सामने माइनस करो. 100 upon 3 minus 30. 28 minus x ब्रैकेट में. 56 माइनस एक दूसरा ब्रैकेट क्रिएट करो x प्लस वाई का. यू सी केयरफुली, माइनस एक्स माइनस वाई दोनों नेगेटिव थे तो मैंने माइनस बाहर कर लिया, x प्लस वाई बचा. And into 10 will remain alone. LCM 3, 100 minus 90, 28 minus x, 56 minus. ये x plus y क्रिएट क्यों किया? क्योंकि x plus y 44 है, वो मुझे पता है. I can substitute 44 here. 100 minus 90, 10 upon 3 is 28 minus x upon 56 minus 44, 12 into 10. 10 upon 3, 12 डिवाइड से सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई से सामने डिवाइड हो जाएगा, is 28 minus x. 10 cut, 3 and 12 cut 4. 4 is equal to 28 minus x. X is 24. Congratulations, you got a round figure. Always, all missing frequency will be natural numbers. और x 24 रख दो तो y 20 मिल जाएगा. It's a pretty decent sum. Answer is 24 and 20. But remember this trick वरना फंस जाओगे. And the trick was take minus common
और x प्लस वाई की जगह पे 44 रख दो. Thank you so much. This is the end of the last paper of standard maths. Best of luck for your board exams 2025. Do well. Make yourself, your parents, and me proud. Bye.